Hello everyone, and here is our family recipe of mutton pulao, and Praful is learning it today with us here. So this is a recipe that everyone in the family kind of uses, and I've learned it from them. So here we go. We have sliced up 4 onions. Praful is about to mince up the garlic, which we will use later, but we can also do this mincing step in a blender grinder. Also here we have other ingredients, the key ingredient, rice and mutton. We use 5 cups of rice, so this size cup. About 3 pounds of mutton, tej patta, 3 bay leaves, garam masala powder, 3 black cardamoms, badi ilaichi, 1 piece of dalchini, and about 8 cloves. About a tablespoon of fennel seeds or saunf, and then black pepper, more than a teaspoon. And our next step would be to make a flavorful stock with all these awesome ingredients here. So we'll now use a pressure cooker or an instant pot, and in that we're going to add our mutton as well as all of these whole spices. And saunf, you want to put it in a muslin cloth like this. So koi bhi purana kapda safed ho aapke paas mein muslin, you put that in this like this and make a potli, or in French they call it bouquet garni, but we call it potli. And just tie it up, and this will go in the stock as well, so that you can take it out when the stock is ready. So we have, तो अब इस कुकर में हमारा सारे होल मसाले चले गए हैं, and that potli, and most important ingredient, salt. तो नमक थोड़ा अंदाजे से डालिएगा. I've put 3 teaspoons and I'll tell you later how it tastes. इसके अंदर पानी है. We have used about 10 cups now, and we'll end up with some extra yakni, which everybody loves to have sip before having the pulao. So that is always the fun part. So there'll be probably some extra yakni here, and I'll cook it for definitely 2 whistles. And then we have to see how tender it is. Like I said earlier, it should not be completely cooked. It should be slightly firm, but tender enough where the cooking finishes with the rice. So we'll cook it now, and we'll show you when that is done. तो अब हम लोग प्याज को फ्राई करने वाले हैं, और एक टिप आपसे शेयर कर रही हूँ. प्याज को जल्दी फ्राई करने के लिए थोड़ा सा इसके ऊपर अगर आप मैदा स्प्रिंकल कर रहे हैं तो जल्दी फ्राई हो जाती है. सो वी हैव फर्स्ट पुट इट ऑन अ पेपर टॉवल सो द वाटर इज गेटिंग एब्जॉर्ब्ड ओवर देयर, and then we are sprinkling about a tablespoon of all-purpose flour on it, and now it's ready for frying. And Praful has already put some hot oil, and he's going to be frying the onions. तो अब onions फ्राई हो रही हैं, और थोड़ी थोड़े बैच में करिएगा ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए. और उसको जो है आपको पूरा ब्राउन नहीं करना है. टेक इट आउट व्हेन इट्स लाइट येलो इन कलर, बिकॉज इट कंटिन्यूज टू ब्राउन एंड कुक इवन आफ्टर इट कम्स आउट. So once this is done frying, we'll take it out on paper towel, and you'll see the color changes from yellow to golden. You want a nice golden color onions, not really dark brown. So now the onions are about getting golden in color, and they should be ready to come out in just a few seconds. तो अभी हमने ये प्रेशर कुकर खोला 2 विसल के बाद में, एंड वी कैन सी हियर दैट मटन इज ओनली पार्शली कुक्ड, और अभी भी काफ़ी फर्म है मटन. तो इसकी मैक्सिमम कुकिंग जो है यखनी के अंदर ही होनी है, क्योंकि चावल के अंदर बहुत कम कुक होगा. सो वी आर गोइंग टू क्लोज द प्रेशर कुकर वंस अगेन एंड गिव इट 1 मोर विसल. अभी हमने यखनी को भी टेस्ट करके देखा, तो यखनी का टेस्ट बहुत बढ़िया है इस समय. And the salt is just perfect for sipping the yakni, but it's not enough for the rice, क्योंकि हमारा 5 cups rice है. तो हम salt भी adjust कर रहे हैं, उसको extra salt डाल रहे हैं, so that it's a little bit on the higher side in yakni, and it'll adjust itself out in the rice. तो अब हम लोग ये मटन के पीसेस को बाहर निकाल रहे हैं यखनी में से, और वो ज़रा सा उनमें से पानी जब निकल जाएगा तो we will now fry those pieces with the crushed garlic. Here's Praful enjoying the yakhni. It's pretty good. How's the yakhni? It's good.
तो अब हमारा टाइम आ गया है कि अब हम अपने मटन को गार्लिक के साथ थोड़ा फ्राई करेंगे। तो आप एक अच्छा सा खुला बर्तन ले लीजिए और उसमें आप थोड़ा सा घी डाल सकते हैं या आप ऑयल वो वाला डाल सकते हैं जो अनियंस को फ्राई करने के बाद बचा था। आई लव घी, तो थोड़ा घी का फ्लेवर आ जाए तो बढ़िया ही रहता है। सो वो डू अ लिटिल बिट ऑफ घी हियर, थोड़ा ऑयल भी अगर आप चाहें तो मिक्स कर सकते हैं। एंड यू आर गोइंग टू ऐड गार्लिक नाउ, द क्रश्ड गार्लिक, एंड फ्राई द मटन पीसेस इन दिस। तो घी अब थोड़ा गर्म हो गया है, द बर्तन वॉज प्री हीटिंग बिफोर। तो अब इसमें हम डालेंगे ये गार्लिक और ये मटन के पीसेस। You don't have to fry the whole spices. They have done their job now and they can be removed. So if you want to remove all the whole spices, you can. If you want the spices, some of the whole spices to be there in the yakhni so that they can flavor the rice, you can do that too. So keep the heat at medium and fry these pieces around. So our mutton pieces are looking nicely brown a little bit. So you don't have to do it for too long. About 3-4 minutes is all it took. अब इसमें से थोड़ा हम मटन को निकालने वाले हैं और उसको सेकेंड लेयर में यूज़ करेंगे। I mean this step is completely optional. अगर आपके मटन की क्वांटिटी कम है तो you can just assemble everything just by keeping the whole entire batch of mutton in the bottom and adding the other things on top of that. But I'm going to try to do two layers at least. So I'm just taking out half of this mutton and keeping it aside. And then all we have to do is assemble, and this will cook pretty fast now. So now we are ready to assemble. Final step. तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो हमारा हाफ मटन इधर बेस में था वो लेयर ऑलरेडी है इस बर्तन के अंदर। प्रफुल हाफ द राइस इसमें ऐड कर दो बेटा। Maybe you can go a little more. Okay, and now spread it around. अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और इसमें थोड़ी फ्राइड अनियंस, about 1/3 of these. You have to save some to put on the top as a garnish. It is so yummy. और अब इसमें हम डालेंगे अपना next layer of mutton. So Praful, please add the remaining mutton. You can add another tej patta or two if you want, just for extra flavor. Not necessary though, optional. Let's add our remaining rice. अब इसमें फिर से गरम मसाला, और this is kind of your choice. You can add a little more garam masala if you want. You can add more whole spices if you want. और अब इसमें जो हमारी फ्लेवरफुल यखनी बनी हुई है जिसमें सॉल्ट और सब होल स्पाइसेस का फ्लेवर है उसको हमें डालना है। तो मैंने इसको थोड़ा सेपरेट करके मेजर करा था। तो दिस इज़ अबाउट 7 cups ऑफ the rice that we had used, that same measure. And थोड़ा राइस ऑलरेडी पानी में सोक हो रहा था, तो that was about 3 cups of water right there. So this much would be just about right. और इसको अब हम ऑन कर देंगे। इसको पहले थोड़ी सी देर हाई हीट पर कुक कर लेंगे। When it all comes to a boil, we can lower the heat and let it cook. Now it's just like cooking any other tahiri, pulao or biryani. Just has to cook for some time until the rice is softened up and all the flavor of the yakni gets into the rice. And this should be awesome. तो अब हमारा पुलाव बन के रेडी है। It took about like 22 minutes. बीच में आप चेक भी कर सकते हो कि उसका नमक ठीक है कि नहीं, so that you can adjust. And अगर यखनी कम पड़ रही है तो थोड़ा सा वो भी आप डाल सकते हो जो आपके पास अगर बची हुई यखनी है तो, or you can fix the water content also. अब देखिए ये पुलाव एकदम रेडी है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। Okay everybody, our mutton pulao is ready.
एकदम चावल खिला खिला बना है, मटन के पीसेस गले हुए बढ़िया लग रहे हैं और फ्राइड अनियंस तो एकदम ज़रूरी है इस डिश के ऊपर, थोड़ी उसके लिए ज़रूर बचा लीजिएगा एंड के लिए। और हमारी ग्रीन चटनी रेडी है, पुदीना धनिया कच्चे आम की चटनी, और साथ में जो रायता बना हुआ है, दैट्स ऑल यू नीड, इवन प्लेन दही इज गुड इनफ। सो फैमिली मेम्बर्स, डिड वी डू अ गुड जॉब? अगर हमने कोई चीज़ मिस करी हो या आपका कोई सजेशन है तो ज़रूर बताइएगा। And anyone else watching, do give this recipe a try. We think you're going to enjoy it just as much as everyone in our family does. Thank you. तो मटन हमने मतलब पहले मटन को उबाल दिया, हल्का उबाला, मतलब थोड़ा बहुत गल जाएगा। हाँ। उसमें पोटली, हाँ, सौंफ की पोटली डाली, सिर्फ नमक और सौंफ की पोटली डाल के उबाल दिया। और एक तरफ प्याज भुनने रख दी। पानी जो है वो फेंकना नहीं है, वो हाँ, यखनी है। हाँ, यखनी मैं बता रहा हूँ वो। तो उसको जो बची हुई प्याज का जो घी है उसमें वो फिर निकाल के उसको भूना, मटन के पीसेस को उसमें भूना। और भूनते समय क्या डाला? लहसुन से भूना, अदरक लहसुन का पेस्ट। हाँ, अच्छी तरह भुन जाना चाहिए, अच्छा, मतलब लाल लाल सा थोड़ा सा दिखता है। हाँ, बस फिर उसको निकाल लो। हाँ, और उसमें उसी कढ़ाई में जीरा डाल के और उसका जो पानी है जो उबला है हाँ, वो उसमें डाल दो। अच्छा, उस कढ़ाई में डाल दो, उसी में यखनी, तो यखनी को जिसमें छौंक लग भुना गया। है, जिसमें भुना है, हाँ, हाँ, वो भी प्याला पी के सबको देते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। तो उसको फिर वहाँ उसमें डाल दो। और यखनी मतलब कहते हैं उसे। तो यखनी में थोड़ा सा आप छौंक लगाया क्या, जीरा डाल, जो आप कह रहे हैं? हाँ, मतलब नीचे थोड़ा सा जीरा डाल के कढ़ाई में जो बचा था तेल जिसमें कि हमने मटन फ्राई किया था, उसी कढ़ाई में थोड़ा सा जीरा डाला और यखनी को उसमें पोर कर दिया। तो उसमें उसकी खुरचन उर्चन सब आ जाएगी। हाँ 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 हाँ, जो यहाँ पे कहते हैं डिग्लेजिंग द पैन। तो वो सब आ जाएगा। हाँ, फिर उसको निकाल लो। हाँ, और उस समय जो भून के खाने में मज़ा आता है, हाँ, हाँ, वो भी एक अलग चीज़ है। हाँ, हाँ, तो थोड़ी सी यखनी हाँ, और वो सब में खिलाते हैं। और फिर बाद में तो लेयर से लगा के लेयर, तो लेयर जो लगाई तो पहले मीट की नीचे लेयर लगाई, पहले मीट की जो हड्डी वाली है, हड्डी वाली लगाई। वो जल कभी नीचे हाँ, से लग हाँ, जाता है ना, तो हाँ, हड्डी जो है वो बफर का काम करती है। हाँ, और फिर उसके ऊपर चावल लगाया, चावल, फिर उसके ऊपर गरम मसाला डाला, हाँ, है ना, और फिर प्याज की लेयर लगाई, हाँ, प्याज की लेयर, फिर एक और मटन की लेयर, हाँ, फिर चावल, फिर डिपेंडिंग अपॉन कितना बन रहा है। हाँ, ठीक है। बस और फिर यखनी फिर यखनी उसके ऊपर उसमें डाल डाल दी। आपका कोई वैसे भी रेशियो का आपका कुछ रहता है कि अगर जैसे आधा किलो मीट है तो कितनी यखनी का वो डलेगा, या वैसे अंदाजे से? अंदाज से करते हैं। हाँ, अंदाज से मैं भी करती हूँ वैसे। कोई वो नहीं हाँ, है, हाँ, हाँ,